Okay. Good afternoon, all. So we will discuss now. Till now, we have discussed about class full addresses, having class A, B, C, and D. Okay. Now we will discuss about the classless addresses. That means the IP addresses that does not belongs to any class. Okay. First of all, we need to identify the reason why there is requirement of classless addresses. Okay, so the reason is if we have classful addresses, suppose we have network, and these classful addresses are divided into like in this fashion. A bigger network or bigger size is of network A. Then smaller than this, we have class B, and smaller than this, we have class C. So whenever any firm require IP addresses, it make request to IANA. It made request to IANA, that is Internet Assigned Number Authority. Okay. So suppose some organization require 100 IPs, so it would make request to the IANA. जब आपको 100 IPs की requirement होगी, तो definitely you should go with the smallest class. और smallest class कौन सी है हमारे पास? Class C. Class C में Class C के एक क्लास के अंदर कितने IPs होते हैं? We have 256, क्योंकि उसमें होस्ट नंबर में क्या वैल्यू होती है? That is 8. होस्ट आईडी में क्या वैल्यू होती है? That is 8. तो उसके 8 होने की वजह से क्या होगा? 256 एड्रेसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट हो जाएंगे. तो यहां पर आउट ऑफ 256, 156 एड्रेसेस वेस्ट जाएगा. पहला इशू ये with the if we go with classful addresses. दूसरा, classful addresses does not provide you any kind of flexibility. वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है. That means अब सपोज मैंने मुझे एक आईपी की भी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे या तो यहां से एक मिलेगा आईपी, या फिर मुझे एक आईपी यहां से मिलेगा, या एक आईपी यहां से मिलेगा. इधर फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी. और रेस्ट जो भी आईपीज होंगे वो वेस्ट चले जाएंगे. सो दैट इज द इशू विद द क्लासफुल एड्रेसेस. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आया CIDR का, दैट इज नोन एज क्लासलेस इंटर-डोमेन राउटिंग. दैट इज नोन एज CIDR, क्लासलेस इंटर-डोमेन राउटिंग. क्लासलेस इंटर-डोमेन राउटिंग क्या काम करती है? Here the network is not divided into classes. यहां पर कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होगी आईपीस की, then those number of IP would be cut from here
and assigned to a particular organization. Suppose the second organization come और उसको ज्यादा आईपीस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक बड़ा कट लगा दिया जाएगा. It will be assigned to some organization B. ओके, अब इसका असाइनमेंट कैसे होता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो अभी के लिए इतना समझ लीजिए. In case of CIDR, that is classless inter-domain routing, there is no classes. Classes का concept खत्म कर दिया गया. और आपको अच्छे से पता है, in case of classful addresses, हमें पता है क्या, क्लास A में जो आपका network ID part है, that consists of 8 bits, and host ID part consists of 24 bits. That is fixed. In case of class B, both are of 16 bits, host ID as well as network ID. In case of class C, network ID consists of 24 bits and last 8 bits is of host ID. Okay, so that is fixed, the partition is fixed, the boundaries are cleared in case of classful addresses. But in case of CIDR, there is no such boundary. We have to define our own boundary in each and every address. So in case of CIDR, the address is represented in this form: A dot B dot C dot D slash N. That is the representation of a network in case of CIDR. A dot B dot C dot D slash N, where A, B, C, D and N are some numbers. Okay, for example, we can take suppose 100.1.2.3/20. अब ये /20 मुझे क्या बताता है, आपको पता ही है आईपी एड्रेसेस में जो सबनेट मास्क है वो कितने बिट्स का होगा, 32 बिट्स का. सो इनिशियल बिट्स मेरी क्या होती है सबनेट मास्क में, दीज आर नेटवर्क आईडी, और मेरी रिमेनिंग बिट्स क्या होती हैं, दीज आर माय होस्ट आईडी. सो /20 दैट मींस द इनिशियल 20 बिट्स मेरी क्या बनेगी, नेटवर्क आईडी, and remaining 12 bits यानी कि 32 minus 20, remaining 12 bits मेरी क्या बनेगी, host ID. ओके, तो यहां पर पार्टीशन ऐसे डिफाइन किया जाता है. क्लास फुल एड्रेसेस की तरह नहीं, दैट इज फिक्स्ड कि क्लास A 8, क्लास B 16, क्लास C 24, ऐसा नहीं. यहां पर इन ईच एंड एवरी नेटवर्क यू हैव टू डिफाइन द पार्टीशन. That means how much part will go to the network ID and how much part will go to the host ID. Okay? So इसमें अगर मैं देखता हूँ, सपोज मैं कुछ IP रिप्रेजेंट करता हूँ, सेम एग्जांपल 10.20.30 .0/26. इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इस नेटवर्क में कितना पार्ट मेरा, इनिशियल 26 बिट्स है ना, मेरा सबनेट मास्क क्या बनेगा, इनिशियल 26 बिट्स मेरी क्या होंगी, नेटवर्क आईडी, और रिमेनिंग जो मेरी 6 बिट्स है वो मेरी क्या बनेगी, होस्ट आईडी. यानी कि इस नेटवर्क के अंदर होस्ट आईडी में कितने बिट्स गई, 52 minus 26 यानी कि 6. नंबर ऑफ होस्ट वी कैन कनेक्ट 2 raised to the power 6 minus 2, सेम चीज. 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 6 minus 2. इनिशियल और लास्ट आईपी क्या बनेगा यहां पर,
इनिशियल आईपी अगेन वही काम करेंगे हम, होस्ट आईडी में पहले सारी वैल्यू क्या कर देंगे हम 0, और फिर होस्ट आईडी में हम सारी वैल्यू क्या कर देंगे 1। अभी हम उसको देखते हैं हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट फॉर द असाइनमेंट ऑफ सीआईडीआर ब्लॉक, for the assignment of CIDR block there are 3 rules। अब उन तीनों रूल्स को देखते हैं बारी बारी, ठीक है। So the topic is rules for assignment of CIDR block। Rule number 1, all the IPs Okay, so there was some issue with the net. Okay. So rule number 1 says that all the addresses must be contiguous. Meaning, suppose I'm taking the block having the address 10.1.2.4, then इसके बाद एड्रेस आना चाहिए .5, then .6 and .7 up to 7. That means there should not be no interleaving, है ना, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिगुअस होने चाहिए। Second rule says that the size of the block must be power of 2. Size of block must be power of 2. Must be of the order of 2 raised to the power n. Okay. The reason behind that rule is, if I take one number 1011, binary number 1011, so in decimal the number is basically 1011. That is what?
if I take example of one binary number 1011 and decimal representation of this number is 802. 11. 11. Okay. So if I divide this number by 2 raised to the power 1, if I divide this number by 2 raised to the power 1, then what will be the quotient and what will be the remainder? If I divide 1011 by 2 raised to the power 1, what will be the quotient? 5. 5. यानी कि 5 1. 101 और रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा. 0 0. If I divide the same number with 2 square, then 2 quotient. So quotient would be 2. Quotient would be 2. That means 10. A remainder would be 3. That is 1 1. If I divide the same 11 with 2 cube, then what would be quotient? 1. 1. And remainder again 3. If I divide the same number with 2 raised to the power 4, क्या आएगा? क्वोशिएंट 0. 16 से डिवाइड करोगे 0 का. Yes sir. Yes, sir. और रिमाइंडर क्या बनेगा? 1011. यही बनेगा पूरा. Yes sir. समझ नहीं आया? ओके. तो अब ये सोचने की बात है, क्या रिमाइंडर क्वोशिएंट के रिमाइंडर फाइंड करने के लिए डू आई नीड टू परफॉर्म डिवीजन? अगर मैं इसको व्यू करता हूं, इस बाइनरी को देखो 2 रेज़ टू द पावर 1 से डिवाइड किया, तो ये पार्ट मेरा क्या बना? क्वोशिएंट. और लास्ट पार्ट मेरा क्या बना? रिमाइंडर. यही तो बन रहा है. Yes, sir. ओके. 2 स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो लास्ट 2 बिट्स मेरी क्या बन रही है? रिमाइंडर. और फर्स्ट 2 बिट्स मेरी क्या बन रही है? क्वोशिएंट. यही आ रहा आंसर. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. से डिवाइड करता हूं, तो लास्ट 3 बिट्स मेरी क्या बन रही है? 0 1. Remainder. फर्स्ट बिट मेरी क्या बन रही है? क्वोशिएंट. 2 रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो लास्ट की 4 बिट्स जो सारी की सारी है, वो मेरे क्या बन गया? रिमाइंडर. रिमाइंडर. और ये मेरा क्या बन गया? जब कुछ नहीं है, इससे पहले क्या लगा होगा? 0 ही होगा. और 0 होगा तो सीधी सी बात है, वो क्या बन जाएगा मेरा? क्वोशिएंट. यानी कि टू परफॉर्म द डिवीजन या फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आई शुड नॉट परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन. बस मैं क्या देख लूं? लास्ट के बिट्स. यानी कि अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर k से डिवाइड कर रहा हूं किसी भी नंबर को, 2 रेज़ टू द पावर k से डिवाइड कर रहा हूं किसी भी नंबर को, तो मैं उसकी लास्ट k बिट्स देख लूं, वो मुझे रिमाइंडर बता देगी. यस और नो? Yes, sir. सर. है ना? ये तो मैंने अभी शो किया. अगर आप एग्जांपल लेते हो, चलो बाइनरी से नहीं समझ पा रहे, अब हम लेते हैं इसका एग्जांपल डेसिमल नंबर. कोई भी नंबर ले लो. 1023 10 रेज़ टू द पावर 1 से डिवाइड करो. आज क्वेश्चन क्या आएगा? 102. Yes, sir. क्या आएगा? 3. 10 स्क्वायर से डिवाइड करो. क्वेश्चन क्या बनेगा? 10. रिमाइंडर क्या आएगा? 23. 23. 10 क्यूब से डिवाइड करो. क्वेश्चन क्या आएगा? 1. 23 क्या बन जाएगा मेरा? रिमाइंडर 10 रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो जी. 0. तो मुझे कोई भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. तो यही रीजन है क्वेश्चन नंबर 2 या जो आपका पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? द साइज ऑफ द ब्लॉक जो भी हम असाइन करेंगे उसके अंदर आईपीस कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म, जिससे कि मुझे डिवीजन परफॉर्म ना करने पड़े.
बस हम लास्ट की कुछ बिट्स देख लें, सो वी कैन आइडेंटिफाई इट क्वाइट इजी। ओके, आपने वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई द साइज ऑफ द पेज, अगर सुनो, पेज सेगमेंट्स, पेज इज ऑलवेज द पावर ऑफ 2, सो दैट इज द केस। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है, द फर्स्ट एड्रेस must be evenly divisible by size of the block. Point number 3 says the very first address of the block जो भी हम असाइन करने वाले हैं, उसका पहला एड्रेस must be divisible by the size of the block, यानी कि 2 raised to the power n से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब ये एक चीज मैंने लिखी है, इवनली डिविजिबल। इवनली डिविजिबल का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इवनली डिविजिबल, वो इवन नंबर से डिविजिबल। इवनली डिविजिबल मींस रिमाइंडर 0 आना चाहिए हमेशा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, तो दैट इज इवनली डिविजिबल। तो तीनों पॉइंट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, जो भी एड्रेस हम असाइन करेंगे वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीगुअस बेसिकली। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी एड्रेस हम असाइन करेंगे वो 2 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में होंगे, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। पॉइंट नंबर 3, जो भी फर्स्ट एड्रेस होगा मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं। I'm taking an example of some IPs like 10.1.2.32.34 up to 47. Okay, IPs 10.1.2.32, 10.1.2.33 and so on. कहां तक जा रहा है ये? 47। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? All the IPs of the block must be continuous. All are contiguous? Yes, sir. 33, 34, 35 up to 47. Second rule क्या बोलता है? The size of the block must be 2 raised to the power n. क्या आ रहा है ये? साइज क्या आ रहा है? कितने हैं ये IPs? How many IPs are there? 16 are 2 raised to the power 4. Yes or no? 16. 2 raised to the power 4. Okay. तो रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हुआ। अब हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि इसका जो फर्स्ट एड्रेस है ये मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 raised to the power 4। देखते हैं इसको। सीधी सी बात है, फर्स्ट एड्रेस की हम बात करेंगे तो 10.1.2. मैं लास्ट ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा हूं। ओके, तो लास्ट ऑक्टेट को हम एक्सपेंड करेंगे। 32 कैसे लिखेंगे हम? 0 0 0 0 0 1 followed by 5 number of zeros, 2 3 4 5, यही होगा। 1 followed by 5 number of zeros. Yes, sir. Okay? मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? 2 raised to the power 4। अभी मैंने क्या बताया? 2 raised to the power k से मैं डिवाइड करता हूं तो लास्ट की k बिट्स देख लूं, तो यहां पर लास्ट की कितनी बिट्स देख रही मुझे? 4। कितनी आ रही है? सारी 0 है।
polar zero, that means this number is evenly divisible by the block size. This number is evenly divisible by the block Block size. ओके, ब्लॉक साइज क्या है मेरा 16, जो कि मैंने अभी प्रूफ कर दिया। तो यानी कि ये थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। ओके, अब सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो भी CIDR ब्लॉक मेंशन करते हैं किस फॉर्म में मेंशन करते हैं, A.B.C.D/N। ओके, सीधी सी बात है, /n में n मुझे क्या शो करता है कि नेटवर्क आईडी पार्ट में कितनी बिट्स होंगी। ओके, और रिमेनिंग मेरी होस्ट आईडी पार्ट में, होस्ट आईडी पार्ट में कितनी बिट्स जा रही है मेरी 4। तो नेटवर्क आईडी पार्ट में कितनी बिट बची मेरी, 32 में से 4 गए, कितने बचे हैं 28। 32 में से 4 गए, कितने बचे 28। तो ये पता चल गया /28 यूज करेंगे आप। एक बात फिर से समझना, देखो जी कितने आईपीज हैं 16 आईपी को बनाने के लिए होस्ट आईडी में सारी वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार सारी वैल्यू 1 रखते हैं, तभी तो वो 16 बिट्स बनी। ओके, तभी तो वो 16 आईपीज बने मेरे। 4 बिट्स चाहिए, 32 में से 4 होस्ट आईडी में चलेगी, बाकी किस में बचेंगी, नेट आईडी में। नेट आईडी यानी कि कितने बिट्स का हुआ 28 बिट्स। आप इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोई भी आईपी को यूज कर सकता हूं। आई एम फ्री टू यूज एनी ऑफ दीज आईपी, चाहे मैं बीच वाली को ले लूं, चाहे मैं फर्स्ट को ले लूं, चाहे मैं लास्ट को ले लूं, वो डिपेंड करता है। तो आई एम टेकिंग द मिडिल वन, यानी कि 10.1.2.34। ओके, सो यानी कि इस आईपी का मतलब ही है क्या, ये पूरा का पूरा ब्लॉक। अगर मैं आपको कोई आईपी मेंशन करूं, स्लैश दे दूं और आपसे पूछूं मुझे इसका लास्ट और फर्स्ट आईपी बता दीजिए। ओके, इसको रीजनरेट करते हैं। सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन, मैंने क्या बताया, पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट मैं किसी भी आईपी से कर सकता हूं और मुझे क्या लिखना होगा, /n। n इज नंबर ऑफ बिट्स इन द नेटवर्क आईडी पार्ट, NID। ओके, वो कितनी आ रही है 28, क्योंकि 4 बिट मेरी किस में थी, होस्ट आईडी पार्ट। ओके, अब मैं इस आईपी से ये पूरी रेंज जनरेट करता हूं, कैसे करें उसको देखो। देखो हमने लिखा क्या, 10.1.2। भाई 4 बिट आ रही है तो सीधी सी बात है 4 मुझे लास्ट से लेने हैं, तो आखिरी ऑक्टेट में ही होंगे, है ना। आखिरी ऑक्टेट में तो लास्ट ऑक्टेट को पूरा एक्सपेंड कर, यानी कि 001 फॉलोड बाय 50, यही बनेगा 32 फॉलोड बाय 5 zeros। इसमें से ये 4 बिट्स मेरी होस्ट आईडी में गई, तो एक रेंज बनाने के लिए एक बार इन चारों को क्या रख दूं मैं 0, और एक बार इन चारों को मैं क्या रख दूं 1। सीधी सी बात है, जब मैं चारों को 0 रखता हूं तो क्या वैल्यू बनेगी, 0 0 1 0 देन 4 0, ये वैल्यू 32 ही बनेगी। और जब मैं चारों को 1 रखता हूं तो ये वैल्यू तो क्या है 32 प्लस 15 क्या बनेगा 47। 32 प्लस 15 क्या बनेगा 47। तो आप किसी भी आईपी का यूज करके कोई भी नंबर या कोई भी रेंज जनरेट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे कैलकुलेट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल।
आप मुझे कैलकुलेट करें। ट्वेंटी, 10, 30, 40/27। एक आईपी दिया मैंने आपको 20.10.30.40/27। सबसे पहले मुझे रेंज बताइए, फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी क्या हो। होस्ट आईडी में कितनी बिट्स जाएंगी? हाउ मेनी बिट्स विल गो टू द होस्ट आईडी? 5 बिट हो जाएंगे। 5 बिट्स, यानी कि कितने आईपीस बनेंगे? अगर 5 बिट्स होस्ट आईडी में चली गई तो 32। पहला आईपी क्या होगा? फर्स्ट आईपी क्या होगा? लास्ट ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दो फटाफट। लास्ट ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दीजिए। अरे 40 इज व्हाट? 32 + 8। One zero one double zero. बनेगा? हाँ, 5 बिट्स गई इसमें, ये लास्ट से 5 बिट्स ले लो मैं, इनको एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, अपने आप रेंज आ जाएगी। हाँ जी, 0 रखो तो पहली आईपी क्या बनेगी? 32 हो जाएगी लास्ट। सारी बिट्स 0 तो 32, लास्ट आईपी बता दो। सारी बिट्स 1 रख दो। 47 हो जाएगा। नो 47 तो पिछले वाले में था बेटा, 32 आईपी बना ली है। आप खुद से ही ऐड कर लो, 32 में 32 ऐड कर दो तो कितना बनेगा? 64। एक कम हो जाएगा 63। आ रही है बात समझ में? 32 से शुरू हुआ, आपने खुद ही बताया मुझे 32 एड्रेसेस बनेंगे, कंटिन्यूअस होंगे, तो 32 से शुरू होके 32 ऐड करोगे 64 तक जाएगा ना, तो आप 32 को इंक्लूड कर रहे हो तो 63 लास्ट जाएगा, सीधी सी बात। ओके, लास्ट आईपी ओके सर। 20.10.30.63/27। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर सर। क्लियर? अब मैं आपको कोई भी आईपी दे दूं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। अच्छा, एक और चीज यहां जरा चेक करो, पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूअस है। दूसरा रूल क्या बोलता है? 2n की फॉर्म में होने चाहिए आईपी। तीसरा रूल चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? थर्ड रूल, द फर्स्ट आईपी must be divisible by the size of the block. The first IP must be divisible by the size of the block. हो रहा है? फर्स्ट IP को एक्सपेंड करो, क्या वैल्यू बनेगी? फॉलोड बाय 5 नंबर ऑफ 0। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ 1 फॉलोड बाय
5 नंबर ऑफ 0 और किससे डिवाइड करना है मुझे 2 रेज़ टू द पावर 5 से, यानी कि लास्ट की 5 बिट देख लो तो 0 आ, तो दैट इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर 5. ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सो अभी हमने ये समझा क्लासलेस एड्रेसेस में अभी मैंने इंक्लूड किया केवल क्या, ओनली द नेटवर्क आईडी पार्ट एंड द होस्ट आईडी पार्ट. अभी हमने इसमें सबनेट्स क्रिएट नहीं किए जैसे हमने क्लासफुल एड्रेसेस में क्रिएट किए. और सबनेट क्रिएट करने के लिए हमने बिट्स कहां से बोरो की थी, होस्ट आईडी पार्ट्स. यहां पर भी यही काम होगा, सबनेट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू बोरो द बिट्स फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट. ओके, तो अगेन वहां पर भी यही काम होता है, जब हम होस्ट आईडी पार्ट से बोरो करेंगे तो आपका नेट आईडी प्लस एसआईडी एक्सपेंड होता है. ओके, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल, सपोज इस पर्टिकुलर नेटवर्क को मुझे 2 सबनेट क्रिएट करना है. पर्टिकुलर नेटवर्क के मुझे 2 सबनेट क्रिएट करना है. ओके, आपने अभी देखा इसके अंदर टोटल कितने आईपीज है, 32, यानी कि 16 एक के अंदर आएंगे, 16 आईपीज यहां आ जाएंगे और 16 आईपीज यहां. तो जरा मुझे रेंज बताओ यहां पर क्या जाएगी फर्स्ट सबनेट में, S1 में और S2. 32 से लेके कहां तक जाएगा जी, 16, 32 प्लस 16 47, और 48 से लेके 15 63 तक जाएगा. 63 लेके 63 तक. ओके, तो यहां पर भी अब एक और चीज आती है. यहां पर मैंने पार्टीशन तो कर दिया, लेकिन अब इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा. आपने अभी देखा नेटवर्क के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए कितनी बिट्स थी, 27 है ना. अब मैंने जब 2 नेटवर्क या 2 सबनेट में क्रिएट कर दिया तो दैट मींस मैंने एक बिट को कंज्यूम किया या एक बिट को बोरो किया कहां से, होस्ट आईडी पार्ट में. तो यहां पर जो नोटेशन में यूज करूंगा /28 यूज करूंगा. तो यहां पर क्या बनेगा, 20.10.30.32/28. और इसकी पहली आईपी क्या है, 20.10.30.48/20. तो आपने देखा ये स्लैश के बाद वाली वैल्यू जितने नेटवर्क में या जितने सबनेट में क्रिएट करूंगा उतनी इंक्रीज हो. तो मैंने एक बिट को कंज्यूम किया कहां से, होस्ट आईडी पार्ट से. सीधी सी बात है, आपका एनआईडी और एसआईडी एक्सपेंड हुआ बट नंबर ऑफ होस्ट कम हो गए, 16 हो गए. आपने एक बिट किसके लिए दे दी, सबनेट के लिए. एक बिट किसके लिए दे दी, सबनेट के लिए. और नंबर ऑफ होस्ट अपने आप आधे हो गए, 60. यहां पर भी 60. ओके, तो यहां पर एनआईडी प्लस एसआईडी कितने बिट्स की हो गई, 28. एनआईडी में कितनी थी, 27, और एसआईडी यहां से कैलकुलेट. एसआईडी में कितनी बिट, 1 बिट. यानी कि नंबर ऑफ सबनेट जो सुबह क्वेश्चन दिया था आपको 2 raised to the power n is 2. Number of subnet is 2 raised to the power 1 is 2. Okay, so ऐसे इन क्वेश्चंस को हम करते हैं रिलेटेड टू क्लासलेस इंटर या CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. इससे रिलेटेड और कंसेप्ट देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. ओके, if any doubt or issue you can ask me, otherwise you may.